Good morning, students. Today we'll start our new chapter, that is Rahul and the Genie. So, here is our reading part. One afternoon, Rahul was returning home from school. As he entered the drive, he stopped short. In the garage lay a pile of junks ready for the kabadiwala part of Mummy's Diwali's spring cleaning drive. For experience, Rahul knew that Mummy often discarded the most interesting things. Quickly he entered the garage, knelt down and began examining the junks. Old notebooks, magazines, tins, bottles, broken toys, nothing here, he exclaimed. Hey, wait a minute, what is this? It was a small brass lamp, very old, faded and dusty. Rahul picked it up. क्या हुआ? एक दिन राहुल जब स्कूल से घर वापस आया तो गैरेज में गया तो उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारा जंक सामान पड़ा हुआ है जो कि कबाड़ी वाले को देते हैं। मम्मी हर दिवाली पे क्लीन करके वो सारा जंक गैरेज में रख देती हैं। सो राहुल जानता था कि बहुत सारी मोस्ट इंटरेस्टिंग सामान है जो मम्मी है ना कबाड़ी वाले को दे देती है, तो वो दे दें उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग हो तो वो खुद के लिए रख ले। तो उसने देखा वहाँ पे बॉटल्स थी, मैगजीन थी, टिन्स थे, नोटबुक्स थी, टूटे हुए टॉयज थे। सो उसको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखा। सडनली उसे एक ब्रास का लैम्प दिखा जो कि बहुत ओल्ड था और बहुत ही डस्टी था, मतलब गंदा था। तो राहुल ने उसे उठा लिया और वो उसको अपने साथ लेके गया क्योंकि he was in his mind he was thinking that this is a picture of Aladdin lamp. Okay, so let's see. Cute, he exclaimed. It looks rather like a picture of Aladdin lamp in my storybook. I wonder if it is magical. Excited, he ran to his room with the lamp. It was not safe to linger on her. The heavens would fall if Mummy came out and caught him holding a fleety old lamp. He was just in time for the very next moment he heard her calling him. Quickly, Rahul shoved the lamp into his cupboard and hid it under his clothes before leaving the room. Back after his lunch, Rahul pulled out the lamp and stared at it. Would it contain a genie who would do his biddings? With growing excitement, Rahul began polishing the lamp against his sleeves. Lo and behold, a luminous pajama called figure slowly emerged, much to Rahul's delight. Salam, master, I am Abdullah. The genie of lamp at your service, spoke the apparitions in a booming voice. Commanded and I shall obey. So what happened? एक्साइटमेंट में जो राहुल था वो लैम्प को अपने रूम में ले गया एंड ही नोज दैट इफ हर मदर कैन सी देन ही विल डेफिनेटली शाउट ऑन हिम. सो ही सडनली द वॉइस केम ऑफ हिज मदर, मतलब उसकी मदर की जैसी ही आवाज़ आई तो उसने अपने कबर्ड में अपनी क्लोथ्स के अंदर उस लैम्प को हाइड कर दिया. और लंच करने के बाद जब वो दोबारा आया तो वो उस लैम्प को क्लीन करने लगा. किससे? रब करने लगा. किससे? अपने ही स्लीव से, है ना, अपने जो भी टी शर्ट की स्लीव है उससे वो रब करने लगा. सडनली उसमें से एक जिनी निकला जिसने एक बड़ा सा पजामा पहना हुआ था और उसने राहुल को सलाम मास्टर कहा और उसने बताया कि उस जिनी का नाम क्या है? अब्दुल्ला. उसने कहा कि है ना, आप जो भी बोलेंगे, आप मुझे जो भी आदेश देंगे वो मैं फुलफिल करूँगा. वाओ, कैन यू रियली डू एनीथिंग? आस्क्ड राहुल, wonderstruck. Well, yes, I suppose, said Abdullah rather doubtfully. Rahul, came a call from outside. It was his friend Neeraj. Rahul suddenly remembered that cricket match the gang had planned for the evening, but his math teacher had given a lot of homework that day. If he sat down to do the work, it would take him more than 2 hours for sure. Then Rahul brightened up
As his eyes fell on Abdullah, his problem was solved. So क्या हुआ, राहुल ने अब्दुल्ला से पूछा क्या तुम कुछ भी कर सकते हो. अब्दुल्ला ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि यस मैं कर सकता हूँ. तो राहुल, इतने में राहुल के जो दोस्त था नीरज, उसने उसको राहुल को आवाज़ दी. तो राहुल को ध्यान आया कि आज क्रिकेट मैच है, पर उसको बहुत सारा जो है वो होमवर्क भी करना है. उसकी मैथ्स की टीचर ने बहुत सारा होमवर्क दिया है. सो राहुल के दिमाग उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जैसे उसने अब्दुल्ला को देखा. व्हाट ही हैड डन, ही सेड अब्दुल्ला टू डू हिज मैथ्स होमवर्क एंड he went to play the cricket match. Okay, now see what happened. Then Rahul brightened up as his eyes fell on Abdullah. His problem was solved. I have some homework. There are 20 sums to do. Here take my notebook and here take my textbook and notebook. Do it for me, he ordered gleefully, handing Abdullah the books. Yes, master, I will, but, said Abdullah. But Rahul had reached out of the room before the genie could complete his sentence. अब क्या हुआ, राहुल ने उसे 20 सम्स करने को दे दिया मैथ्स के. अब्दुल्ला कुछ कहने ही वाला था, इससे पहले ही राहुल जो था वो रूम से बाहर चला गया उसको अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक्स देके. इट वॉज क्वाइट लेट when Rahul came into his room, exhausted after a virtual game. The book was laying on the table. Abdullah was now here to be seen. He must have gone back into the lamp after finishing his task. Rahul had his dinner and happily went to bed. क्या हुआ, फिर जब राहुल गेम खेल के आया तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था. फिर उसने देखा कि जिनी भी वहाँ पे नहीं है, तो उसको लगा कि जिनी डेफिनेटली अपना वर्क कंप्लीट करके लैम्प के अंदर चला गया होगा. सो उसने बहुत खुशी के साथ अपना डिनर किया और उसके बाद वो सो गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग द फर्स्ट पीरियड वॉज अरिथमेटिक, कॉन्फिडेंट दैट मिसेस आचार्य वुड बी सेटिस्फाइड विद हिज वर्क फॉर वंस. He handed over his notebook to her as soon as he asked for it. But Rahul was in for a nasty shock. Rahul, what is this? Shrieked Mrs. Acharya furiously. Every single sum is wrong, and what atrocious handwriting! What are you thinking of while doing this? She held the open notebook out of him, and poor Rahul stared in horror at the illegible scrawl with ink blots all over. The writing was crossed out and overwritten in places and splitted over the page boundaries to the margin of the facing page. So क्या हुआ कि जैसे राहुल जो था वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो उसका पूरा होमवर्क बहुत अच्छे से हो चुका है. सो मिसेस आचार्य के मांगने के पहले ही राहुल ने उन्हें अपनी नोटबुक दे दी. और जैसे ही उन्होंने मिसेस आचार्य ने वो देखा तो उन्होंने राहुल को स्कोल्ड किया कि ये कैसा काम किया है तुमने, इतना गंदा काम कौन करता है, पूरी जगह इंक ब्लोट हो रखी है, हैंड राइटिंग वॉज सो पुअर एंड ओवर राइटिंग इज ऑल्सो देयर, एंड जो पेज बाउंड्री होती है उसके मार्जिन के बाहर भी तुमने लिखा हुआ है. मतलब बहुत ही पुअर वर्क था वो. और जो सम्स थे वो सारे सम्स रॉन्ग थे. Remembering that his maths teacher was a stickler for neatness, Rahul cried. और जो उसकी मैथ्स टीचर थी राहुल की, वो नीटनेस उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. वो बहुत स्ट्रिक्ट थी नीटनेस को लेके. As a punishment for your sloppy work, you will miss your game period today, Rahul declared Mrs. Acharya. During that time, you will sit in the class and work out each sum neatly, not once, but twice, and show me your work before going home. That evening, Rahul returned home fuming. He rushed straight to his room to summon Abdullah and demand an explanation. I did not know how to do those sums, master, said Abdullah. We haven't been taught this kind of arithmetic in Ginny's school. I wanted to tell you that, but you went away before I could speak, so I just did the sum as best as I could. So what happened?
राहुल को इतना पुअर वर्क करने के लिए एंड रॉन्ग सम करने के लिए मिसेस आचार्य ने पनिशमेंट दी। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें अपने गेम पीरियड में नहीं जाना है और बैठ के सारे सम्स को 2 बार सॉल्व करना है ना, और घर जाने से पहले उससे ये वर्क जो है कंप्लीट करके मैम को दिखाना भी था। फिर अब राहुल ने वो वर्क कंप्लीट किया और बहुत ही निराश होकर वो घर पहुंचा, और बहुत ही निराश होकर वो घर पहुंचा, साथ ही बहुत गुस्से में भी था, है ना। और वो वहाँ घर पहुंचते ही उसने सोच लिया था कि वो जाते ही अब्दुल्ला से इसका एक्सप्लेनेशन मांगेगा। व्हेन ही आस्क्ड टू अब्दुल्ला, देन अब्दुल्ला सेड कि हमारे जिन स्कूल में ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स करना हमें नहीं सिखाए हैं, और मैं ये आपको बात बताने वाला था उसके पहले ही आप चले गए, सो मैंने अपना बेस्ट किया जितना मैं कर सकता था। राहुल could only stare at him in speechless dismay. राहुल जो था वो एकदम स्पीचलेस रहा और स्पीचलेस हो गया जिनी के सामने उसका एक्सप्लेनेशन सुन के। जस्ट देन ही रिमेम्बर्ड समथिंग। दैट मॉर्निंग मम्मी हैड गिवन हिम एन ultimatum. If he did not clean up his room before evening, she would stop his pocket money for a fortnight. He now decided to give Abdullah another chance. Okay, clean up my room, he ordered. Keep everything in its proper place. Mummy will be around in an hour. Time to check. Very well, master, said Abdullah. Rahul went off to play. Returning an hour later, he ushered Mummy into his room, confident once again that it would not be in a mess. अब क्या हुआ? राहुल को याद था कि मम्मी ने कहा था आज शाम तक तुम्हारा रूम क्लीन हो जाना चाहिए, सो उसने अब्दुल्ला को एक और चांस दिया और कहा कि जो मेरा रूम है वो क्लीन कर दो, हर जगह को उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखो। अगर ऐसा उसका रूम क्लीन नहीं हुआ तो मम्मी जो है उसकी पॉकेट मनी बंद कर देंगी। सो अब्दुल्ला ने कहा ओके, और उसके ओके कहते ही राहुल फिर से खेलने चला गया। जब वो 1 घंटे बाद आया तो वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि अब वो किसी भी प्रॉब्लम में नहीं है और उसका रूम जो है बहुत नीट एंड क्लीन होगा और मम्मी ये देख के बहुत खुश हो जाएगी। बट द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज लेफ्ट गैपिंग एट द अटर डिसऑर्डर इन द रूम। इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक, डिमांडेड मम्मी outraged. Books and toys on the bed, pillows on the floor, clothes on the table. What is in your cupboard? She stood up to the cupboard and threw the door open. The next moment she jumped back as large frog leap out at her. क्या हुआ? जैसे ही मम्मी आई तो मम्मी को बहुत तेज गुस्सा आया, क्योंकि जो बुक्स और टॉय थे वो बेड पे थे, पिलो फ्लोर पे था, क्लोथ्स थे वो टेबल पे थे, मतलब कुछ भी प्रॉपर नहीं रखा। Rahul gulped. This was a disaster indeed. The frog was his pet, which he had kept in a carefully hidden bottle. Why had Abdullah released it? That does it. No pocket money for you for a whole month, Mummy declared and marched out. रूम में पूरा इधर उधर देख के सामान कबर्ड बिखरी हुई देख के मम्मी ने 1 मंथ के लिए राहुल की जो पॉकेट मनी थी उसे बंद कर दी और वो बाहर चली गई। राहुल न्यू दैट शी वॉज इन नो मूड टू लिसन टू एनी एक्सप्लेनेशन. ही groaned and buried his head in his hand in utter disappointment. His despair soon gave way to fury. Abdullah had better give a good explanation for this. Master, you only told me to keep everything in its proper place. How could I know the original arrangements? Asked the genie petulantly. When Rahul questioned him, what is your next order? Rahul lost his temper. The next order, he shouted, get lost. I don't need you. Go back to Genie Land or wherever you came from. Almost at once he regretted his outburst, but it was too late. Whoosh, zoom. Before his eyes, Abdullah vanished. The lamp spun in the air and disappeared from the sight. Oh no, what I have done, exclaimed Rahul, slapping his forehead. Now my magic is gone. नाउ मैजिक इज गॉन. सो क्या हुआ कि जब उसकी 1 मंथ की पॉकेट मनी बंद हो गई तो फिर अब्दुल्ला से राहुल ने फिर से
एक्सप्लेनेशन मांगा कि ये तुमने ऐसा क्यों किया और प्रॉपर काम क्यों नहीं किया। तो अब्दुल्ला ने कहा कि मैं तो जानता ही नहीं कि इनकी प्रॉपर प्लेस कहाँ है, सो जैसा मुझे लगा मैंने वैसा कर दिया। राहुल ने अपना इसका एक्सप्लेनेशन सुनते ही, अब्दुल्ला का एक्सप्लेनेशन सुनते ही राहुल को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने अपना टेम्परामेंट को लॉस कर दिया। सो जैसे ही अब्दुल्ला ने पूछा व्हाट्स योर नेक्स्ट ऑर्डर, राहुल ने कह दिया कि तुम अपने जिने लैंड चल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही राहुल को रिग्रेट हुआ, बट वो बहुत लेट हो चुका था क्योंकि जिनी वहाँ से जा चुका था और लैम्प जो था वो भी गायब हो चुका था। राहुल अपने फोरहेड पे उसने स्लैप किया और कहा कि मैंने ये क्या कर दिया, अब मेरा मैजिक जो है वो जा चुका है, बट अब कुछ नहीं हो सकता। देन अ फ्रेश थॉट स्टक हिम, आई गॉट द मैजिक लैम्प, सो ऑन सेकेंड थॉट मे बी इट इज़ बेटर दिस वे, वर्किंग फॉर थिंग्स इज बेटर देन विशिंग फॉर देम। There was a smile on his face as he got up. Briskly he began putting his things back in order. So क्या हुआ, एक तरह के एक थॉट पे उसे लगा कि मेरा मैजिक जो है वो ख़त्म हो गया है, और दूसरे ही थॉट पे उसे लगा कि वो मे बी हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए और हम इससे बेटर वे में कर सकते हैं रादर देन विशिंग टू एनीवन, है ना। और जैसे ही वो सो के उठा तो उसके फेस पे एक स्माइल थी और उसने अपने सारे काम खुद करने शुरू किए और अपनी जो चीज़ें थी उसको अपनी जगह पे रखना शुरू किया। सो इससे हमें ये पता चलता है कि हम किसी भी काम के लिए विश करें तो वो सिर्फ एक विश रहती है, और वो अप टू द मार्क होगी या नहीं होगी दैट वी डोंट नो। सो we have to complete our work by ourselves. Okay, so that's all for today. Thank you and have a good day.